Management Institute. It's the most unique topic. As per my knowledge, there are a lot of peoples, there are a lot of families, there are a lot of my friends, my all of the society's good human beings peoples. Also and always worried about his daughter, his son, some relatives. I don't know why. They are very much upset. And that's the main reason. Definitely I give a good example here. The bird from the foreign lands. You don't have to become like anyone else. You have become yourself. You have become yourself. Listen carefully. Again, I repeat this question. You don't have to become like anyone else. You have to become yourself. There was one king who was a great lover of birds. One evening, a very strange birds come and sit on his window. The king exclaimed, "What? Can such a bird as it excite?" Such a bird was impossible to find in the king's realm. It was a bird of foreign origin. Just passing by on his journey, it was tried and so sit the king's window for a rest. The king became worried. It might live so. He had a caught. He had its wrong clapped. He's thinking and again thinking, what is the bird? I can't see this bird in my all country. But they are upset. They are very much upset because he's a very good lover of birds. He's a very much caring the birds. The bird's break was quite large, and so he also had cut down to size. During these operations, the bird went and schemed, trying to free itself, trying to get away. But the king would not allow to eat, no matter what's happened. He said, no matter how too difficult it is, this bird must be made into the proper form and proper shape. This mind is already decided. My country's bird is same and this bird is also same. There is poor bird does not know how to bird should be. Maybe the bird is poor. There is not man and human beings. You think about in otherwise in society, there are only one being the rich and poor system in only for humanity in the men's and women's. There is no in birds, cows and buffaloes, and there are others so many trees also. Nobody can other trees said this is a small tree and this is a poor tree. This concept poor and rich is only for the human being of the only human psychology. This is not it is everyone is unique. That's a part of my vision. It seems have never seen himself to a mirror. Maybe the bird never seen himself of the mirror. What kind of bird can have such wings to such a break? So hard the break wings and clapped is made and the strange is bird into the model of perfect bird. Then he said, because king decided in mind what is the same type of same bird word. Now, dear bird, you can fly away. But he had no strength to fly away. Crying and weeping, he died. There is no they stop. Your wings are your wings. There is no formula to how to they should be. Their only purpose to wings are the enable you to fly. That is enough. Their shape, their style, their aspect, their color, all these are the perfect in the enable to you fly. When you have a model, an ideal, you try to become the like that. There cannot be gather stupidly than this. Try to be like yourself. There is no one to else like you. You don't have a become like anyone else. You have become yourself. That's my intention of tell to you very frankly. You are unique. मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं. बहुत सारी सभाओं में जाने के बाद और बहुत सारे मित्र परिवारों के साथ चर्चा और वार्तालाप करने के बाद पता चलता है उनके बच्चों के भविष्य के बारे में. कोई डॉक्टर होता है, कोई उनकी पत्नी सुविद्य पत्नी जी भी डॉक्टर होती है तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाए. कोई लोग समाज में उद्योग व्यवसाय करते हैं तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी उद्योग व्यवसाय करे, मेरी बच्ची उद्योग व्यवसाय करे.
कोई आर्टिस्ट होते सोचते कि मेरा बेटा अभी मैंने इतना नाम कमाए वो भी कमाए। मैं सोचता हूं हमेशा, अगर आप किसी को आइडल रखोगे और उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे, चंद दिन पहले की बात है, मैंने बहुत सारे महापुरुषों के गेटअप करके पूरे हिंदुस्तान और भारत में भाषण दिया। और मैं हमेशा वो जब गेटअप करता था ना, तो मैं सोचता था कि मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जब रामकृष्ण मठ में जाके भाषण देने वाला हूं, तो मैं क्या बताऊं। जो चीजें जो जानकार लोग हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है, जिनका आचरण वो कर रहे हैं, उनके सामने जाने के बाद अगर मैं उसी के विचार उनके सामने दोहराऊं तो वो कहेंगे ये पागल है, हमें आके क्या सिखा रहा है, हमने तो पूरी जिंदगी यही पढ़ी है। मैंने सिर्फ उनके विचार देने का प्रयास किया और उसमें मैं काफी हद तक सफल हुआ। भाई और बहनों, मैं आज विश्वास देना चाहता हूं आप सबको। आप सोचो मत कि वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसी है, वो कैसी है, वो मेरी दोस्त है, वो मेरे बेटे का, मेरे मामा के बेटे ने इतने मार्क्स मिलाए, वो कलेक्टर बन गया और मेरा बेटा इधर उधर घूम रहा है। अरे मैं सोच रहा हूं, वो तेरे मामा का बेटा अलग है, तेरा बेटा अलग है। तुम दोनों अगर उसकी जैसे बनने को उसको काबिल बनाओगे, किसी के जैसा बनो मत। तुम खुद ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि देखो कितना अच्छा कार्य कर रहा है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक राजा था जो बहुत पक्षियों का प्रेमी था। एक दिन विचित्र सी चिड़िया उसके मतलब घर के उसके महल के खिड़की के ऊपर आके बैठी। राजा उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी ऐसी चिड़िया देखी ही नहीं थी। जो उसके राज्य में थी वो तो अलग चिड़िया थी, वो तो सब एक जैसा थी। राजा को लगा इसी टाइप की चिड़िया होती है। फिर राजा को लगा ये गरीब चिड़िया है, इसलिए इसको दिक्कत भी होगी उड़ने के लिए, इतने बड़े बड़े पंख है, उसको अलग ही दिखती है। क्या है, भगवान का देन, कभी कभी ऐसे भगवान बना देता है। और वो बेचारी चिड़िया, क्योंकि वो पक्षियों का प्रेमी था, वो तो बेचारी ही सोचेगा। माँ बाप ही सोचते मेरा बेटा देखो ना कितना अच्छा है, कितना गरीब है, कितना शांत है, उसको तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। भले अभी वो शांत होकर चिंतन करता होगा। ये बहुत छोटी सी कहानी है, बट बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। 4th स्टैंडर्ड में खलील जिब्रान था और उस समय गुरुजी ने उनको पूछा था उनके क्लास में कि आपको सबको एक एक स्टोरी लिखनी है। सब बच्चों ने पेपर लिया, स्टोरी लिखने लगे। खलील जिब्रान ने कुछ भी नहीं लिखा और उसने स्टोरी में सबको एक कहा था गुरुजी ने कि इस जगत में सबसे दुखी कौन है, इसके ऊपर कहानी लिखो। सबने बहुत 2-2, 4-4 पेज की कहानी लिखी और खलील जिब्रान ने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, मासा, फिश। सबने गुरुजी को लाके दे दिया अपने अपने पेपर। और पेपर देने के बाद खलील जिब्रान का जब समय आया तो उसने पेपर पे लिखा, एक ही वर्ड था, सिर्फ फिश लिखा था, उसके ऊपर मासा लिखा था। गुरुजी ने पूछा, खलील ये तुमने क्या लिखा है? मैंने तुम्हें दुखी, सबसे जगत में दुखी व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में, प्रसंग के बारे में स्टोरी लिखने के लिए कहा था, एक वर्ड लिखने के लिए नहीं कहा था। तुमने तो फिश लिखा है, बताओ इसके बारे में क्या बताना चाहते हो? खलील जिब्रान शांति से खड़ा हुआ और उसने कहा, गुरुजी इस जगत में सबसे दुखी प्राणी है मासा, फिश, क्योंकि वो जब रोता है ना तो उसका आंसू कभी किसी को दिखते नहीं। गुरुजी ने उसके पीठ पे थपथपाया और कहा, बेटा एक दिन तू बहुत बड़ा विचारवंत बन जाएगा। और उस समय के गुरुजी का वो वचन उन्होंने सही किया। बाद में खलील जिब्रान बहुत बड़े राइटर बन गए। पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर के हाथ में अगर साइंटिस्ट का अगर आप बना देते तो सचिन तेंदुलकर अग्निपंख बना पाते? ये क्षमता अगर किसी में है तो उसमें बढ़ावा दे दो, क्यों नहीं आगे जाओगे? राजा को लगा ये चिड़िया तो गरीब है बेचारी, जैसे हम हमारे बच्चों के बारे में हम सोचते हैं, हम हमारे सभी बच्चों, सभी माँ बाप को गरीब ही लगते। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको भी उड़ने की क्षमता होगी। और जब यह सब कुछ किया तो राजा ने क्या किया? फिर देखो, राजा ही था वो, उसने वो चिड़िया को पकड़ लिया। राज्य के कुछ उनके सहयोगियों को बुलाया और उसको बोलो उसकी चोंच जरा छोटी करो, उसके पंख जरा कटाओ, अपनी चिड़िया जैसे बनाओ। और जब वो सब कुछ किया तो वो चिड़िया बहुत चिल्लाई, बहुत रोई। फिर राजा को फर्क नहीं पड़ा, उसको लगा थोड़ा दर्द होगा, बाद में ठीक हो जाएगी। फिर राजा ने उसकी बिल्कुल चलने नहीं दी, अपनी अपनी कर दी, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर लाद लेते। राजा कहना था कि ये चिड़िया अभी ठीक से उड़ पाएगी, उसको मैंने ठीक कर रहा हूं, जैसे बाकी पक्षियों की तरह मैं उसको कर रहा हूं, फिर वो उड़ेगी।
फिर राजा ने यह भी सोचा कि इसने कभी दर्पण में देखा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ चलते रहते हैं, कुछ आइडियोलॉजी नहीं होती, कुछ नहीं होता। वो बहुत सारे लोग सक्सेसफुल मैंने देखे, वो कहते हैं कुछ नहीं सर, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम करते हैं और हम चलते रहते हैं, रुकते नहीं, बस इतना ही। उसी प्रकार लोगों को अगर किसी के जैसा बनने के लिए कहोगे ना, सबसे बड़ी गलती करोगे, क्योंकि वो तो उनके जैसा नहीं बनेगा, लेकिन जो बनना चाहता था वो भी नहीं बनेगा। इसीलिए किसी को किसी के जैसा बनने को मत कहो, किसी को किसी के जैसा बनने का प्रभाव मत डालो। हाँ, आप कुछ अच्छे विचार जरूर रखो, कुछ अच्छे आदर्श जरूर रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कॉपी करो। फिर राजा ने अपनी राज्य की चिड़िया की तरह जब उसके पंख काटे, उसकी चोंच काटी, और बाद में राजा ने कहा चलो अभी उसको उड़ने को दे दो। अभी आप देखिए, उसने चिड़िया को बिल्कुल वैसा बना लिया जैसे उसके बाकी राज्य की चिड़िया थी। उसका काम पूरा हुआ तो उसने चिड़िया को बोला चल अब तू उड़ सकती है, अब तुम उड़ सकती हो, जहां जाना चाहती हो जाओ, आपका मन करेगा उड़ जाओ, जहां बैठना है बैठ जाओ। रोती और तड़पती हुई वो चिड़िया मर गई। तुम्हारे पंख तुम्हारे हैं और उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। वो कोई नहीं चाहता कि वो कैसे बने। किसको पता था कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने चाय बेचने से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। किसको पता था कि अग्निपंख एक मछुआरे का बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएंगे। किसको पता था इन लोगों के बारे में? कोई बता सकता था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भाषण सुनने के लिए प्रदेश राज्य के जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के होंगे, लंदन के होंगे, वो लोग पिछले के दरवाजे से आके बैठते थे और सुनते थे 30-40 मिनट का भाषण। लेकिन उनकी कमो अन्ना, जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्ट्रगल करके जी रहे थे, अपने बुक्स के पढ़ रहे थे, और जब उनका वो हौसला बढ़ा रहे थे तो उनके परिवार ने उनको साथ दिया था। ये नहीं सोचा था कि ये पढ़ लिख के क्या होगा। मैं विश्वास देना चाहता हूं, अभी 1-2 महीने पहले की बात है, मैं एक ट्रैवल कर रहा था और उस समय मेरी चेतन भगत जी से फ्लाइट में मुलाकात हुई। मैंने चेतन भगत जी से पूछा सर आपने अपना ये सब रास्ता कैसे तय किया? उन्होंने उस जगह से कहा, उस समय मुझे कहा, सुनील जी 10 साल मेरी काम वाली बाई मुझे पूछती थी, सर मैडम काम पे जाते आप घर में बैठते सिर्फ लिखते रहते, आप काम क्यों नहीं करते? मैंने उनको बताया अरे मैं लिखता हूं, मैं काम करता हूं। अरे ये लिखना विखना तो ठीक है सर, लेकिन आप घर में रोजी रोटी कमाने के लिए काम क्यों नहीं करते? आपकी पत्नी काम करती है, मुझे दिखाई नहीं देता, अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर चेतन भगत जी हंसे और कहा कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लिख रहा था, ये मेरा काम ही मैं कर रहा था। यानी काम करने का मतलब सुबह घर से टिफिन लेके निकले, शाम को घर आए, फिर वो काम करता है क्या करता है किसको क्या पता। ये डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए दुनिया में बदलने के लिए। राजा ने जब वो चिड़िया को, मैं इसीलिए एग्जांपल देता हूं कि आपको समझ में आए, जब राजा ने उसके पंख काटे, जो अपने चिड़ियों की तरह बनाने की कोशिश की, उनका आकार, रंग, ढंग, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जज्बातों में। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे भाइयों, संकल्प का धन चाहिए। और संकल्प कहां से आता है? संकल्प आता है अंदर से, और ये अंदर की आवाज तुम स्वयं सुनो। एक दिन तुम महान बन जाओगे और तुम आदर्श बन जाओगे, इतना मुझे वादा है, ये मेरा विश्वास है। मैं आप सबको यहां देना चाहता हूं। इसलिए सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने चिड़िया की तरह उस अपने बच्चों के पंख मत काटो, उनको उड़ने दो जैसा उड़ना है। बस एक याद रखना, उनको जीवन की जो शिक्षा, जो अच्छा वातावरण और जो अच्छा परवरिश उनकी करनी है वो करो। यही मैं कहना चाहूं। धन्यवाद।